Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sarjan English Medium School at Natya Juna. And today I am taking social science. Chapter name is natural disaster. Right. This is the part three of this video, and in the previous video we already talked about two natural disaster, volcano and earthquake, right? So in this video we're going to know about tsunami, what is meaning of tsunami and what are the disaster of tsunami, that we're going to know about it. So very interesting this one, very informative chapter this one, right? So now I'm going to start reading. What is tsunami? Due to volcanic eruption of earthquake on the sea floor, high oceanic wave are created, they are known as a tsunami. ठीक है, this is the definition of tsunami, so please underline this one. वोल्केनिक की वजह से जो इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन होता है और जो अर्थक्वेक होता है, दे आर द टू बेसिक रीजन फॉर द सुनामी. जो ऑन द सी फ्लोर के ऊपर जब वोल्केनो इरप्शन होता है या अर्थक्वेक होता है, उसकी वजह से तो हाई ओशनिक वेव क्रिएट होता है, उसको सुनामी कहते हैं. दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ. उसका जो हाई और अनइमेजिनेबल लेंथ होता है, बहुत हाई हाइट होती है उसकी और लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है सुनामी की. Here the picture of tsunami, you can see the scene of oceanic wave of tsunami. You can see the picture of tsunami and destruction of tsunami. देखो यहाँ पे कितनी बड़ी वेव है, आप you can see easily there is a high wave and length is very high. And when the tsunami wave is reached at coastal area, the what kind of destruction they did, you can see. Now further, the length is what is the length of the tsunami? The length is approximately 700 to 1600 किलोमीटर तक होता है. These waves travel with a great speed and force. ये ट्रैवल करते हैं काफ़ी स्पीड के साथ और फोर्स के साथ. By the time they reach at coast, जब वो कोस्ट पे इलाके पे पहुंचती है, उसके टाइम के अनुसार, they attain great height and power which cause a great deal of destruction इन द कोस्टल रीजन. जैसे वहाँ पे टकराती है, कोलैप्स होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करते हैं कोस्टल रीजन में. इट वॉज विटनेस्ड ऑन 11 March 2011 इन जापान. सो दैट हैव जापान एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ सुनामी. So you can see if you want to what kind of destruction happened because of tsunami in the Japan, so you can find the video on YouTube. You can put date 11 March 2011 in Japan, so you can find out the what kind of destruction the tsunami can did in the Japan, right? Now further, strong and whirling winds also created big and strong waves. जो strong and whirling winds होता है, winds की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा strong wave create होता है. Once the storm gets over, this wave become a tall with a high wavelength which can travel great distance. उसकी वजह से वो लेंथ की वजह से जो काफ़ी हाई होता है, वो काफ़ी ग्रेट डिस्टेंस में वो क्या करते हैं, वो क्रिएट हो जाता है, उसकी वो हो जाता है. Such a wave cause a great deal of destruction in the coastal region. इस प्रकार की वेव की वजह से जो कोस्टल एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. हैंस दे आर नॉन एज द डिस्ट्रक्टिव वेव, जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहा जाता है, वो आप जरा अंडरलाइन कर लेना. एट द टाइम रॉक फॉल, आइस फॉल और अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स और स्लम्स कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टू क्रिएट अ सुनामी, राइट. सो एट द टाइम ऑफ रॉक फॉल्स, रॉक का जो रॉक फॉल होता है, आइस फॉल्स होता है और अंडर वाटर लैंड स्लाइड, पानी के अंदर जो लैंड स्लाइड होता है, और slumps can generate the displacement of water to create a tsunami. So these are the reason for also the tsunami, so please make bracket, right. So this is tsunami. Now next is a flood. What is meaning of flood? उसका हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब पूर होता है, जो पूर आता है ना. तो ये द पिक्चर ऑफ द फ्लूड, सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्यू टू द फ्लूड. फ्लूड की वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं, कौन कौन से भयंकर हालत हो जाते हैं. यू कैन सी, देखो कहाँ सारे तरफ पानी पानी है, आप देख सकते हैं, ठीक है. तो द फ्लो ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द रिवर इज़ कॉल्ड द फ्लूड. मतलब इसको अंडरलाइन कर लो जरा, कि जो वाटर के अंदर जो एक्सेसिव वाटर होता है, बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लूड, ठीक है. द फ्लो ऑफ एक्सेसिव ऑफ वाटर इन द रिवर इज़ कॉल्ड फ्लूड. फ्लूड अकर ड्यू टू द टू रीजन, दो वजह से फ्लूड होता है. हेवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर, सेकंड रीजन है इन अ डैम ऑन रिवर ब्रेक्स. If a dam on river break,
फ्लूड अकर इन द लो लेइंग एरिया ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, जो नीचे जो लो साइड दे आर स्टेइंग इन द लो साइड ऑफ रिवर, जो डाउन साइड में रहते हैं, नीचे रहते हैं, उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होता है फ्लूड। ये जो फ्लूड होता है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर डैम वेम अगर टूट जाता है तब भी वो बहुत नुकसान होता है, और हेवी रेन की वजह से फ्लूड आ जाता है। यहाँ पे कुछ नोट्स है दैट वी कैन नोट दैट गंगा यमुना जो फ्लूडी रिवर है, आप कह सकते हैं फ्लूड इफेक्टेड एरिया नॉर्थ इंडिया में बहुत, गंगा यमुना का बहुत इफेक्ट रहता है नॉर्थ इंडिया में। हर साल बाढ़ आते हैं वहाँ पे, उसको बाढ़ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, पूर कहते हैं, गुजराती में बोलते हैं, आपको पता है, पूर आया, बाढ़ आई। और 1978 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। और मच्छू है गुजरात में, मोरबी डिस्ट्रिक्ट में 1979 में आया था। तापी है सूरत गुजरात डिस्ट्रिक्ट गुजरात स्टेट में 2006 में आया था। कोची बिहार में 2008। ये जो कोची नदी है, ठीक है, वो भी बहुत एवरी ईयर दे कम विद द फ्लूड इन द बिहार, तो वो भी होता है। बिहार स्टेट में भी काफ़ी नुकसान होता है। 2008 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर है हिमाइन। उसका मतलब होता है दुष्काल। ठीक है, बहुत यू कैन सी द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिमाइन, आप देख सकते हैं कैसी हालत हो जाती है हिमाइन के टाइम पे। इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव व्हेन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड द स्कैरसिटी ऑफ रेन दैट क्रिएट अ हिमाइन। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे क्या होता है हिमाइन। स्कैनिडी रेनफ्लो लीड्स टू द ड्राइंग अप of the groundwater and shortage of food and water. This condition is known as a famine. So please underline this one. जब भी बारिश की कमी हो या फिर कम बारिश हो और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर ड्राई हो जाए, है ना, और शॉर्टेज हो जाए पानी के और खाने की, उस कंडीशन को बोलते हैं फेमाइन। ठीक है, द कंडीशन ऑफ फेमाइन ऑकर इन केस ऑफ स्कैनिडी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2 or 3 years सक्सेसिवली। फीमाइन की कंडीशन कब क्रिएट होती है कि 2-3 साल तक बारिश ना हो या फिर थोड़ी बारिश हो। ठीक है, तो उसकी वजह से फीमाइन की कंडीशन क्रिएट होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमाइन इज़ लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज। अगर हम प्लांट ट्रीज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हम प्लांट करते हैं, तो डेफिनेटली फीमाइन की जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी कम हो जाएगी। आई थिंक मैं तो कहता हूँ होगी नहीं। अगर वी हैव प्लांट एवरी ईयर मोर एंड मोर ट्रीज, सो इट्स मच बेटर टू फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर आवर ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है कि नाउ डेज वी आर फेसिंग वेरी इश्यूज इन द पेंडेमिक्स एंड दिस डिसीज आर गोइंग ऑन, राइट, कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ दिस इज ग्लोबल वार्मिंग इज एवरीवेयर एंड वी आर नॉट रिस्पेक्ट एंड वी आर नॉट केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट। सो वी शुड केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट। वी हैव टू प्लांट ट्रीज एंड वी डू आवर सेल्फ, दैट इज मच बेटर, राइट। We have to not wait for anyone. We do ourselves because we are living in this earth, we are living in this area, society. So this is our moral responsibility that we have to plant trees every year according to our condition, and we have to spread the message to our friends, circles, and in our relations, right? So if we plant trees, so they gain more rain, right? So we can gain more rain. They rain comes very and the many things that global warming also decrease, environment also will clean, and oxygen produce more and more, right? Because trees are create oxygen, right? So without oxygen we can't survive in this on this earth. So trees only the source of oxygen. So that thing we have to keep in our mind. Clear? So next is next is the cyclone. The simple meaning of cyclone is air which blow at a great speed. Please underline below what is simple meaning of cyclone. It can be called a storm of whirlwind. इसको storm of whirlwind भी कहा जाता है। तो कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो इंडिया का कोस्टल एरिया होता है हर साल वहाँ पे साइक्लोन इफेक्टिव होता है। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस इन द एवरी ईयर। स्पेशली ईस्टर्न एरिया होता है, हम इंडिया का जो ईस्टर्न साइड एरिया है, इस साइड का कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एवरी ईयर साइक्लोन एक्सपीरियंस होता है। द adjacent region also feel the effect of cyclone when it is at its highest intensity. जब साइक्लोन अपनी हाईएस्ट इंटेंसिटी पे होना, तब ये जो कोस्टल एरिया से दूर का एरिया भी होगा वहाँ पे भी साइक्लोन एक्सपीरियंस होता है। However, this winds affect limited area for a limited period of time only. ये जो उसका जो इफेक्ट होता है बहुत कम टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, और फिर साइक्लोन चला जाता है, बहुत कम टाइम रहता है। ये द सीन ऑफ अ साइक्लोन डिजास्टर है।
ठीक है. Scene of cyclone, you can see what kind of disaster did cyclone, you can see the picture. Now next is a forest fire. You can see the picture of forest fire. What kind of forest fire you can see? Friction between the dry branches of trees and other factor cause forest fire. These are the cause of forest fire. जब फ्रिक्शन होता है जो एक दूसरे के साथ उसका घसारा बोलते हैं, जिसको फ्रिक्शन होता है ड्राई ब्रांचेज और ट्रीज के साथ, तो उसकी वजह से फायर ऑकर होता है, फायर होता है. इट कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इसकी वजह से फॉरेस्ट रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. नेक्स्ट है लैंडस्लाइड. ज़मीन का खिसक जाना, उसको लैंडस्लाइड कहता है. सीन ऑफ लैंडस्लाइड, यू कैन सी द पिक्चर. तो व्हाट आर द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्लाइड. उसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है. The sliding of large mass of rock materials, soil, etc. down the side of the mountain or cliff is termed as a landslide. Please underline करो यहाँ तक. तो स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक, जो रॉक का जो लार्ज मास होता है, उसका जो मटेरियल्स होता है, दैट मटेरियल जो सोयल होता है ना, वो डाउन द साइड ऑफ माउंटेन और क्लिफ, वहाँ से गिरता है, खिचकता है, तो उस कंडीशन को उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड. वो लैंडस्लाइड कहा जाता है. टू फैक्टर कोज द लैंडस्लाइड, वो है एक्सेसिव रेनफॉल, एक तो एक्सेसिव रेनफॉल है, और है ना अर्थक्वेक, और दूसरा अर्थक्वेक. फॉर एग्जाम्पल इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोकण गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड की वजह से कोकण जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाता है, क्योंकि पूरी तरह से लैंडस्लाइड हो जाता है. ठीक है. So now this chapter is over. I hope you got every point. This is the natural disaster. Very informative chapter this one. I gave my best to explain you every line, right? So this is the what kind of natural disaster, right? So every point I explained myself. Chapter number 5, natural disaster, earthquake, right? Then next is volcanoes. What kind of volcanoes, that we already taught. Then tsunami, then flood, famine, and cyclone and forest fire. So every point which I explain you, and please I also told you underline, so that underline point is very important, and highlight that point, and write exercise from your side in your prayer book. Clear? So please stay home, stay safe at your home, take care of yourself, and daily basis do reading daily, right? So much better for your study. So next video according to our timetable we will upload on our channel. So please and we will inform you, right? So please take care of yourself. Have a nice day. Bye.